ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରୁଛେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଥାଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିର ବୀଜ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ମୋବାଇଲରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅଛି, ତ ଆପଣ କାଢିକି ଶ୍ଲୋକଟି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପଢିପାରିବେ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାଗବତ ଲୋଡ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 8। ପ୍ରବନ୍ଧାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ। आज्ञा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी शेयर करी कि आज्ञा पढ़ନ୍ତୁ श्लोक पढ़ନ୍ତୁ। आज्ञा प्रभु। 8 आज्ञा जदृच्छया मत्कथादौ जात श्रद्धस्तु जपुमान् न निर्विण्णनाति शक्तो भक्ति योगस्य सिद्धद। अनुवाद। भौतिक जीवन प्रति अत्यधिक आसक्त नथिबा जदि कौनसी व्यक्ति निकटरे सौभाग्यवशतः मोर महिमा श्रवण कीर्तन श्रद्धा जागृत हुए, तेबे ता पक्षरे सिद्धि लाभ करने निमित्त मोर प्रेममय भक्तिर माध्यम अवलंबन करने उचित। हरे कृष्ण। तेणु एठी कहउଛନ୍ତି जे भगवानଙ୍କର କୃପାରୁ ଜଣେ କଣ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରେ। ଆମର ଶ୍ରୀଲ ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଜଣେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବ କଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସିକି ତା ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜୀବ କଣ କରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପୁନଃ ମାୟାରେ ସେ କଣ ହୁଏ, ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କୃପା ଯୋଗୁ ଜୀବ ଆସେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ। ଯଦି ପୁନଃ ସେ ୟାକୁ ବୁଝି ନପାରେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରେ, ପୁନଃ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ମାୟାର ଇଏରେ ବନ୍ଧନରେ ସେ ପୁନଃ ସେ ପଶିଯାଏ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଯାହା ପ୍ରଥମ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ମତକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ପନ୍ଥା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୂଜା ଆଉ ପ୍ରେମର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ
ना एमाने गुरुंकर निर्देश अनुसार तांकर आज्ञा को विश्वस्त सहकारे पालन करती आने भगवान वाणी को प्रचार करती एवं परवर्ती समय से माने आध्यात्मिक गुरु हमार योग्यता लाभ करी प्रथम श्रेणी भक्त रूप में विवेचित होती। जदि जड़े प्रथम श्रेणी भक्त उच्च आधिकारिक नीति विचित हुए ना सी कौन करे ना गभीर विश्वास स्थापन करती शास्त्र उपरे एवं शुष्क जहाँ मानसिक कल्पना जल्पना उपरे तर्क उपरे से माने आग्रही हुअन्ति नहीं एवं से माने प्रेमपूर्ण सेवा को अत्यंत दृढ़तार सहित से माने करिकी से माने उत्तम अधिकारी रूप में से माने परिचित हन। तेबे आपण भितर कहि परिबे जे श्रील प्रभुपाद केउ सेवारे अत्यंत दक्षता थिला प्रभुपादଙ୍କର बा प्रभुपाद जड़े उत्तम अधिकारी रूप में आपण माने केमती काहेकि प्रभुपाद जड़े उत्तम अधिकारी भावुछन। प्रमोदानंद गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से निज प्रभुपाद चाहिए वृंदावन राधा को भजन कर पारते किंतु से बद्ध जीव मान से जाकर बहुत कष्ट स्वीकार करी अन्य जीव मान उद्धार करने से जाइछन्ति बहुत कष्ट स्वीकार करी जहाँकि उत्तम अधिकार लक्षण अटे। अच्छा संध्या राणी माता जी प्रभुपादଙ୍କର को सेवा उपरे आपण चिंता करछन्ति जे प्रभुपाद अत्यंत दक्ष थिले। हरे कृष्ण प्रभु प्रभुपाद समस्त भागवतम शास्त्र सब हमको जो देइछन्ति आमे ताको पढ़ी परछु सेगुडा से रचना करछन्ति से अच्छा योगेश गोपीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुपाद आचार एवं प्रचार दुईटी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अजित हरि प्रभु आपण कहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु आपको जो मायावाद माया व्यस्तर खंडन जे देखो श्रील प्रभुपाद सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाणी को से सब कौन करना पाथय करिकी भगवान वाणी प्रचार से नियुक्त कर ग्रंथ दे वास्तव में श्रील प्रभुपाद को कौन विशेष ये भितर कौन करा आम रखिपारे कारण प्रभुपाद सबुति अत्यंत दक्ष थिले। तेणु ये कहते जे से माने कौन करती ना प्रामाणिक गुरुंकर नीतिरु से माने केबे हेले निजुको विच्युत करती नाही। एटा होची प्रभुपादଙ୍କର एक विशेष गुण बा जो माने प्रामाणिक आचार्य बा गुरु तांकर एटा होची एक विशेष योग्यता से माने गुरु परंपरार ये से माने केबे हेले भी विच्युत होती नाही। जो व्यक्तिर विश्वास दृढ़ नुहे एवं शास्त्रीय सिद्धांत उल्लेख करें ना से नहीं द्वितीय श्रेणी भक्त बा मध्यम अधिकारी संज्ञा रूप निरूपण कराई माने शास्त्र जुक्ति उपस्थापना करियर विशेष दक्ष नहले से लक्ष्य संबंध रे दृढ़ विश्वास पोषण करती एवं से माने भगवान कृष्ण को जे जीवन चरम लक्ष्य ताहा से माने जानी थांती। मध्यम श्रेणी भक्त माने शास्त्र जुक्ति उपस्थापना करें किंतु से माने जीवन लक्ष्य संबंध रे अत्यंत दक्ष थांती। एवं तृतीय कैटेगरी होची जो विश्वास दृढ़ नुहे एवं से शास्त्रीय श्रद्धा सिद्धांत मध्य जानती नहीं से कनिष्ठ बा तृतीय श्रेणी भक्त बोली नवीन भक्त रूप से कह जाए। द्वितीय श्रेणी भक्त माने शास्त्र जुक्ति उपस्थापना करना पारे लक्ष्य संबंध रे से जहाँ कहती लक्ष्य से स्थिर थाए। तेणु नवीन भक्त और इस्कन गोटे नवीन भक्त को कौन कह जाए ये कह चाहिए कनिष्ठ भक्त प्रभु कनिष्ठ एटा तो शास्त्रीय भाषा इस्कन इंग्लिश रे गोटे टर्म अछि न्यूफाइड डिवोटी neophyte devotee those who are always fight among themselves they are neophyte devotee
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ବି କଳି କରୁଛେ, ଝଗଡା କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, although we are very senior, still we are in new devotee। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି 4 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀଚ ଭରତଶ୍ରବ। ଏଇ 4 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଭୌତିକ ଦୁଃଖର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବନ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको वॉइस की सुगंध प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 4 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ 4 ଜଣ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ମହାରାଜ ଧ୍ରୁବ ନବୀନ ଶ୍ରେଣୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନବୀନ ଶ୍ରେଣୀର କୁହାଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କାହା କଥା କଣ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ
हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम कौन भॉइस आसुनी। प्रभु मेसेज कर दियंतु। हरे कृष्ण। हाँ तो ये वर्णना करा जाउछि जे जने भगवत गीतार सप्तम अध्याय यही जो चारि प्रकार भक्तों कथा माने चर्चा कले आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी एमाने शुद्ध भक्तों संग कलापर एम समस्त पुण्यात्मा बोली कहुई आ शुद्ध भक्त मान संग फल एमाने कौन करती द्वितीय व प्रथम श्रेणी को उन्नीत हो पारती। तेणु जितेबेला पर्यंत आम जीवन में पाप कार्यर प्रभाव संपूर्ण भाव में जाई नहीं जड़े केवल कृष्ण चेतन हवा कृष्ण चेतनशील हवा भाई धारा को आसवा बहुत कष्टकर पाखे से आपण मैंने देखिए जिते प्रचार को हम जाऊ अनेक लोक मैंने ग्रंथ को धरी भी पारती नहीं। हाँ कारण जो मानकर प्रचुर पुण्य कर्म न थाए आपण मैंने देखिए वो अनेक भक्तों को देखिए से भगवान का आगे छिड़ा भी हो पारती भगवान का आगे छिड़ा हवा नाम जप करवा ये सबू कहते बहुत सुकृतिवान भक्तर कार्य श्री जीव गोस्वामी बहुत सुंदर भाव भावार्थ से प्रस्तुत करछंती जे जो भक्त मानकर पूर्व जन्मर अर्जित बहुत सुकृत थाए से माने भगवान को बहुत समय धरिकी देखी पारन तेरे आपण मान के जन भक्त अधिका सबुठ अधिका समय भगवान कृष्ण को देखिछन हैंड रेज कले अधिका समय बुझिपड़ुनी आम सबुठ अधिका समय 15 मिनिट देखुचे मंगल आरती 15 मिनिट रु अधिका को माने भगवान को देखिछन 15 मिनिट रु अधिका श्रीमन महाप्रभु जितेबाला जगन्नाथ को जाकि दर्शन करते महाप्रभु सकाल जान प्रातः मुहूर्त एवं भंड भोग माने प्राय 3:30 पर से भोगटी लगे पुरी श्री मंदिर रे एवं तापरे भंड भोगर घंटी शुभिला परे महाप्रभुଙ୍କର बाह्य माने आवेश आसे एवं से जाते एवं कहती जे मु जगन्नाथ को जमा भी आज देखि पारलिनि नेत्र भरी एते सकाळु आसंती प्राय 5-6 घंटा देखिला परे भी श्रीमन महाप्रभु निजे तांको जीवन में आचरण कर देखौछन्ती जे किबळी भाव रे भगवान को जने देखिबार लोभ पोषण करवा दरकार एवं एठी कहउछन्ती जे जने जते पर्यंत तार जीवन रे पाप कर्मर प्रभाव रही थाए जने आध्यात्मिक जीवन प्रति तार रुचि हेबो नाही तेणु एठी मध्य चारि भाग रे जो विभक्त करा हैछि आरती अर्थार्थी ज्ञानी आ जिज्ञासु तेणु एमाने दुख रे पड़िले बा नास्तिक हो जाती बा कम्युनिस्ट हो जाती एवं एमानकर भगवान को ऊपर जम्मा भी दृढ़ विश्वास न थाए से माने भावती जे भगवान को संपूर्ण रूपे अस्वीकार करने द्वारा दुख सहित निजको खाप खुआई कि जने से चली पारे गोटे माने उदाहरण कहया चाहिए थरे आमर इस्कन चौपाटी मंदिर रे परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज पाखे
जड़े बहुत धनाढ़ परिवार पुत्र जड़े से ब्रह्मचारी होगा चाहे तेणु जेहेतु से बहुत बहुत धनाढ़ परिवार पिला थिले एवं ब्रह्मचारी रहिबा आजिकल तो बहुत जहाँ कहते आश्चर्यजनक विषय तेणु महाराज से पचारे जे तुम्हें कहीं ब्रह्मचारी रही चाहूच तेणु सी कहले जे महाराज आमर ये जो मंदिर चौपाठी मंदिर मु तो वैकुंठ देखनी किंतु मु भावुची वैकुंठ रे भी एते आनंद नथिबो बा एभली भगवान जो माने आराधना हो नथिबो तो महाराज कहे ताको गोटे प्रश्न कले कि मुझे गोटे प्रश्न पचारि से कहले हाँ गुरु महाराज पचारन महाराज कहले जदि एई जो सेटअप टा अछि इस्कन चौपाटी मंदिर टा जदि भांगी जीव ताहले तुमे कौन करिवो कहला महाराज एटा संभव केबे नुहे से गुरु को उत्तर देले कहला महाराज एटा केबे भी संभव नुहे केबे भी एटा भांगीबानी बढ़ी चलियो दिनक दिन कारण आपण अछन महाराज कहले मु कहूची राधानाथ स्वामी कहउचनी जे सेटअप टा काली सकाळु भांगी जीव ताले तुमे कौन करिवो तेणु से बहुत समय भाविला पर कहले महाराज घर को पळे महाराज कहले वर्तमान घर को पळा आ गृहस्थ है कि ठिकाना घरे भजन कर तुम्हें यदि ब्रह्मचारी रहा कथा तुम्हें कह ठीक अच्छे चौपाटी मंदिर भांगी जाओ मु वृंदावन को पळेबी कि मायापुर को पळेबी कि पुरी पळेबी सेठी जाइए भक्ति करी किंतु तुम जब एबेठू घर को जीवार कथा पाटरू बाहर बेटर तुम्हें घर को जाओ आ घरे गृहस्थ है भक्ति कर तेणु मोर कहबार उद्देश्य होची जे जो मानकर कौन थाए जो माने भक्त संग न करती बा जो मानकर जीवन में पापर प्रभाव थाए से माने भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करि पारते नहीं अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन भगवान प्रति पर्याय आज पर्यंत चले के आनचन से आगो को मध्य चलेबे तेणु भगवान भगवत गीता रे वर्णना करछंती चारि प्रकार भक्तन विषय तेणु भगवान कृष्ण सहित संबंध स्थापन आरंभ रु ही कौन हुए ये मौलिक नीति आरंभ हुए जे सी भक्त जी से भगवान को प्रति बदल रे किसी चाहे ना जमती श्रील प्रभुपाद को बहुत खराब लगे ये भजन टी प्राय भारत वर्ष समस्ते गाती किंतु प्रभुपाद हमको स्ट्रिक्टली मना करछने हमें केबे भी भजन गाया कथा नहीं ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का तेणु भक्त तार प्रार्थना बल भगवान को भक्ति करिया बल से भगवान ठू किछि चाहे ना आ प्रहलाद महाराज तो भगवान को डायरेक्ट कहले देखंतु एठी भक्ति रसामृतर सिंधुर स्थितिटा कोड देखंतु रूप गोस्वामी वर्णना करछन्ति ध्रुव महाराज होते नवीन भक्त नूतन भक्त होते ध्रुव महाराज के तपस्या करछन्ति हम माने समस्ते सुनिछे बा जानिथिबा तेणु यदि ध्रुव महाराज नवीन भक्त आमे को कैटेगरी अजित हरि प्रभु आमर कैटेगरीटा कोठी वर्तमान अजित हरि प्रभु आपण कहया चाहिए प्रभु ऑन ही करना कौन कहया चाहिए कल्याण माते जी आमे वर्तमान को कैटेगरी भक्त यदि ध्रुव महाराज नूतन भक्त न्यू डिवोटी आमे को कैटेगरी हरे कृष्ण प्रभु श्याम प्रणाम ताको सामने हमर तो आमे सिटी कल्पना भी करि परनो काहे ना ध्रुव महाराज कोबरे आमे माने भक्त आमे कनिष्ठ भक्त भी कहया भी हमको निजको योग्यता आसुन प्रभु जी हरे कृष्ण गोटे दंडवत प्रणाम आपण माने प्राय एई उदाहरण भी आगुर बहुत थर देइछि आज्ञा आपण माने देखथिबे सूर्य उदय पूर्व अरुण उदय हुए अरुण उदय माने सूर्य अरुण सूर्यंकर बड़ भाई अरुण उदय माने आकाश रे लालिमा छाई जाए आकाश माने परिष्कार हो जाए लालिमा देखा जाए अर्थात अरुण ही संवाद दियंती जे वर्तमान सूर्य नारायण बहुत शीघ्र आसुचंती आपण मन को कृतार्थ करिया पे तो एटा जे भक्ता भाषार स्थिति आम भक्त हैने भक्त भली देखा जाउचे आमर स्थिति वर्तमान सेमती आम प्रयास करछे भक्ति करने किंतु आम भक्ति अवस्था को आसीने एटी प्रभुपाद भावार्थ लिखुचंती ए अध्याय रे जे भगवत गीता रे स्वीकार हैछि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते बहु जन्म अतिबाहित कला परे
जड़े प्रकृत रे ज्ञान लाभ करे जे भगवान कृष्ण होचंती सबु कारणर कारण एवं से निजको तांका चरण रे समर्पण करे एवं से धीरे तांका वृत्ति कौन हुए तार तांकर प्रेम भाव को से वर्धित करे आ विशेष करी भगवान कर ज्ञानी व्यक्ति माने बहुत प्रिय तथापि से माने कौन होंती ना उदार से दुखरे अभाव पड़ते अभीष्ट स्थिति श्रीकृष्ण शरणापन्न होती ए दृष्टि से उदार प्रशांत मना महात्मा बोली ग्रहण करा बेले बेले इस्कन भक्त मैंने कहते भगवान को मागिया कथा नुहे हाँ तेणु जो मैंने से प्रभुपाद कहती जे इस्कन जो मैंने प्रीचर होचंदी से मैंने शिल प्रभुपाद ग्रंथ को बारंबार पढ़िवा दरकार ये भूल कथा कहया कथा नुहे क्रिश्चियन माने लोक क्रिश्चियन लोक माने कहउचंदी जेसस तुमको बहुत भल पान मुसलमान कहते तुम अल्लाह को ग्रहण कर तुम सब पाप को भगवान क्षमा कर दे हिंदू लोक कहते नहीं आम प्रचार करछे कौन ना भगवान तुम सब धन संपत्ति छड़े नेबे तेणु भगवान तो आतंकवादी भी आहरी भयंकर हो गले जदि भगवान ये कार्य करें किंतु वास्तव में भागवत सिद्धांत अनुसार व्यक्ति भगवान को सबु किछि जणैवा दरकार जेमती जड़े तार विश्वस्त पत्नी निकट में कौन सी कथा लुचाए ना तार हृदय को खोलिकी से रखे सेमती जड़े भगवान को आगे निजर हृदय खोला जहाँ कहते भाव को व्यक्त करिया दरकार एवं भगवान को जहा किछि आवश्यक जेमती सुदामा आंकर पत्नी सुशीला तांको पठेइतिले जे तुमे जाओ तुमर बंधु को देखा करिया भाई जीवन रे हमर मोर मन अछि पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज गोटे फेस्टिवल हेता 2005 मसिया रे नेशनल यूथ फेस्टिवल सेते बेले आमे जाइथिलु एवं प्राय भारत वर्ष रु 5000 स्टूडेंट माने जोग दै तो जने स्टूडेंट महाराज को पचारथिले जे महाराज गोटे थर करे गोटे चांस रे भगवान केतेटा विश पूर्ण करिवे आमे केतेटा जिंस मागी परिवे केतेटा विश भगवान पूर्ण करिवे तो महाराज श्री उत्तर देते तुम गोटे पेन और पेपर नियो विश लिखि चल भगवान जिते बेले देखा देवे गोटे थर करे सब विश फुलफिल करदेवे आ जीवन में केवे कहा को भी मागिए पड़िबो वास्तव में महाराज श्री निजर कथा कही एटा हूँ भागवत सिद्धांत एवं यहाँ को सूरदास कविदास माने आदि महान भक्त माने भजन लिखी दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया तेणु प्रत्येक व्यक्ति आम माने जे भी अच्छे मु गत काली भगवान ब्रजलीला गोटे क्लास दौली इस्कन बुर्ला से व्यक्त करी जे वास्तव में भगवान किभली भगवान एते भगवान हृदयटा केमती भगवान एते करुणामय जे भक्त इच्छा जहा इच्छा करे भगवान कौन करती भक्त जहा वांछा करे प्रभु ताहा मुक्ति करे किंतु जे प्रकृत रे भक्त से केबे इच्छा करे जे प्रभु मोर जहा कहते 2-3 किलो सोना मते मिलू बा मोर 10-15टा घर हो जाऊ जे प्रकृत रे भक्त से सब जिनस चाहे भक्तर अभिलाष कौन था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंग अवश्य निजर स्थान काल परिस्थिति अनुसार सिंपल लिविंग रो परिभाषा भिन्न हो पारे आजिकल समाज रे तापरे इस्कन रे जो माने गृहस्थ भक्त तांकर आवश्यकताटा बहुत अधिक मते जने भक्त कहउतले जे आजिर समय तो मु तो से मते प्राय 7-8 वर्ष पूर्व कहउतले कि 9 वर्ष पूर्व से कहउतले एकादशी दिन मिनिमम 300 टंका नहले गोटे टाइम रो प्रसाद भी हेई परिबो गृहस्थ मानकर घर कथा कहउछ तो बहुत किसी आवश्यकता रही भगवान सेवा पाई निजर सेवा पाई पिला मानू मनीष करने बाद कौन ना साधु सेवा करने गृहस्थ तो परम कट आटलिस्ट मासक हो 2 मास हो 6 मास हो आटलिस्ट वर्ष थे जड़े गृहस्थ व्यक्ति निश्चित वैष्णव मान प्रसाद दवा दरकार डाक जब से निज जीवन में कल्याण चाहूँ प्रसाद निहाती दवा दरकार गृहस्थ व्यक्ति मान गृहस्थ व्यक्ति गोटे कार्य कले से विरक्त माने जो गति को प्राप्त होती गृहस्थ व्यक्ति से गति को प्राप्त हम से प्रसाद सेवा से भक्ति विनोद ठाकुर लिखि प्रसाद सेवा करते है सकल प्रपंच जय समस्त प्रकार जो असुविधा रही से असुविधा जड़े कौन हम ना से मुक्त हो पार तेणु वास्तव जड़े ज्ञानी व्यक्ति से कौन हुए ना भगवान कृष्ण अति प्रिय एवं जदि तार किसी जीवन में आवश्यकता थाए से पूरण करे यही प्रसंग रे
ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ବାସ୍ତବରେ କରୁଣାମୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ? ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଥର ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। नरसिंह मेहता प्रभु प्रत्यक्ष नरसिंह रूप मेहता जमती आम आज ऑनलाइन बहुत कम भक्त कैमेरा ऑन करछन तो मु जेमती आपण मन को देखि पारछि सेमती प्रत्यक्ष रूप रे ये भगवान को कलि युग रे सबुठ अधिका थर देखिथिले किए कहक चाहिए? नरसिंह मेहता आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी नरसिंह मेहता दंड नरसिंह मेहता नरसिंह मेहता तो नरसिंह मेहता एते गरीब थिले जे तांकर बड़ भाई दिने तांकर सहित झगड़ा कले जे वास्तव रे तुम जीवनटा तुम गोटे माने तुमर जीवनटा गोटे वृथा जीवन तुम कहीं मनुष्य जीवन पाइल कारण तुम्हें तो किसी रोजगार कर टंकाटे आ खाली से बसिकी कृष्ण कृष्ण गोविंद द्वारिकाधीश होच आ तुमे केवल अन्न ध्वंस करछ भाव जेतले गाड़ी करिया को आरंभ कले बहुत समय कला परे तांकर पत्नी आ सही पारले नरसिंह मेहता सेमती स्थिर अछन तेणु से कहीं गाली करते ना तांकर 2 दिन परे कौन ना तांकर पितांकर श्राद्धर दिन आसला तेणु तांक स्त्री अपमान सही न पारी कहले ठीक अछि एथर श्राद्ध आमे करी तेणु इतले कहिदेले तांक भाई चुप है कि बड़ भाई से चुप है कि पळेले आ सी कौन कले पूरा स्थिर है कि बसले जे देखियो ये दरिद्र कांगाल कौन करूछ तेणु नरसिंह मेहता तांक स्त्री को बुझेले जे देखो बड़ भाई से गाली कले चली था तुम्हें कहीं उत्तर देला हम तो एते अभाव स्थिति रे अच्छे से माने हमको चलाउछ ना हम केमती करबा तेणु तांक स्त्री कहले देख तुमर एते अपमान मु सही परिबिनी मो पाखे तो किछि नाही किंतु मोर बापा मते माँ माने नाक फुल पिंधती नाकर आभूषण को आपण जहाँ भी कहते तो से नाक फुल गोटे सुनार थिला बहुत पतला तेणु सेटा शेष संपत्ति थिला तांक पाखरे आसे आनिकी देले आ कहले तुमे याको बिक्री करिकी कौन कर किछि सौदा नहीं कि आस जहाँ फल आम पितांकर श्राद्ध करि पारि तेणु नरसिंह मेहता जाइछन्ति सकाळु जे से किछि टंका नहीं कि आसीबे आउ बा वस्तु नहीं कि आसीबे तेणु नरसिंह मेहता को जी देखिला से धार दवा पई राजी ହେଲା आ सेतବେଳେ से कौन ना घी कहते 3 किलो 3 किलो घी आसो ब्राह्मण मान को भोजन दिया हो पूरी छणा हब बा खीरी हब तेणु कहीं से कहले आम पाखे घी अच्छी कि जंदा पड़ी कहीं ना नरसिंह मेहता को कहीं दवा को चाहून ये तो पैसा दे पारे भिकारी लोकटा ये किए खादब समाज रे जार धन ना लोक मैंने अति हेय मन कर तेणु से नरसिंह मेहता जाई शेष देखिले गोटे मोटा है दुकानी बसची आउ ता पाखरे बहुत सुंदर जिनस अच्छी तेणु सी व्यक्ति तो जाई कहले ये व्यक्ति जनक समस्ते नरसिंह मेहता को देखी नाक टेकुले किए बसिया को दौन किए खराब व्यवहार करते कि सी व्यक्ति जनक नरसिंह मेहता को डाकिकी पाखरे बसैले और पचारे कौन से कहले मो पाखे एतिक जिनस अच्छी आ तुमर भी बहुत जिनस दरकार मोर पितांकर श्राद्ध दिन मु श्राद्ध करी तुम्हें मत धार दे था मुझे सुझीदेवी से कहले हाँ तुम जहाँ दरकार मु तुमको देदेवी कि तुम्हें कौन जान तुम विशेषत्व कौन से तुम भजन कीर्तन जाना कि से कहले हाँ मुझे बहुत सुंदर गाया तेणु कहले देखी तुम्हें गाइला 2-4टा भजन नरसिंह मेहता को तो यहीटा करने सब भल लगे तेणु नरसिंह मेहता कौन कर सकाळु संध्या पर्यंत बसिकी भजन गाई आ से जो व्यक्ति जनक दुकान जनक खुशी रे शुणुच तापरे मने पड़ला श्राद्धर पुणी निर्दिष्ट समय थाए निर्दिष्ट समय गड़ी गला श्राद्ध तर्पण हेब ना नरसिंह मेहता जानले जे मो स्त्री आज मत रखिब ना घरे वर्तमान घरे प्रलयर परिस्थिति सृष्टि हम तेणु बहुत डरी डरी से कौन कर जहाँ किसी सामग्री से जो साहूकार ठू आनी से साहूकार सुना भी नेलानी आ जिनस भी देदेले धरिकी आसुन जी नरसिंह मेहता को बाटर देखुन समस्ते प्रणाम कर कारण आम ओडिया गोटे कथा अच्छे चमत्कार को नमस्कार जदि आपण कई आपन पचार नथिबे आपण टंका बांटंतु तापर सी आपनकर गोड़ धोइकी आपन चरणामृत पाई कहबा आपनकर जय हो तेणु समस्त लोक नरसिंह मेहता शुणुचंदी
ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଖାଇବା ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନୁ। ସବୁ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡର ଓଢଣା ଆହୁରି ଅଧିକା ପକେଇକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଶାଢୀରେ ସୁନା କାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜଣେ ଖାଇବେ, ଜଣେ ଲୋକ 2 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଡିବ ଘରକୁ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ଗଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ନରସିଂହ ମେହେଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ 14 ପୁରୁଷରେ ଏମିତି କିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭୋଜ ଦେଇନନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଭାବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ବାଡି ଫାଡି ଧରି ବାଡେଇବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ଆସିକି ଏକ ଭଦ୍ର ନାରୀ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନରସିଂହ ମେହେଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ କଣ କାମ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ପରେ କେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଇଦବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଘିଅ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବା ସବୁ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ କିଏ ସେ ପଠେଇଲେ ତମ ପାଖକୁ? ନା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ। ହଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନରସିଂହ ମେହେଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାତିରେ ଦୌଡିକି ଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେ ଦୋକାନୀ ନାହିଁ, ସେଠି କେହି ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଏ? ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। ଭଗବାନ ନିଜେ କଣ କଲେ, ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ କିଛି ବସ୍ତୁ ବା ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଭଗବାନ କେବେ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ କଣ କରିବେ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତି ନ ହେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେବେ ଦୃଢ ହେଇପାରିବ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସେ ଦେହ ନୁହେଁ ସେ ଆତ୍ମା, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ସେ ଜାଣେ ସେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଏବଂ ସେ ଜାଣେ ଯେ ତାର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେହ ସହିତ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଜାଣନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସମୁଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି କେତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ମିରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୁଣୀ ବା ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ବଢେଇବା ଦରକାର। ଦୁଃଖରେ ବା ଅର୍ଥ ଭାବରେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୌତିକ ଭାବଧାରା ଅଛି, କାରଣ ଦୁଃଖ ଓ ଅର୍ଥ ଭାବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଦେହ ସହିତ। ଜଣେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ବା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅଧସ୍ତନ ବା ଅଣୁସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀର ସମ୍ପର୍କ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାର ସହିତ ତାର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜୀବନର ଦୈହିକ ଭାବଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେହ ଧାରଣରେ ଅଛେ ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବା ନା ଶୁଦ୍ଧ ସେବା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ଭାଗବତ କ୍ଲାସରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ କିଛି ମାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛେ ବା ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି ବି ସେବା କରୁଛେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର କଣ ହୁଏ, ମୋର କଣ ହଉ ମୋ ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ମୋ ମନରେ ବିକାର ନ ଆସୁ, କ୍ରୋଧ ନ ଆସୁ, କାମ ଭାବ ନ ଆସୁ, ମୋ ହୃଦୟଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଭାବନା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ। ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ମୋର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ
ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ हे कृष्ण ବୋଲି ଡାକିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ, କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ शुद्ध स्थिति को जाती सेमाने ही शुद्ध स्थिति को केवल जाइबना तो दैहिक धारणा रो मुक्त हो जाती। एटा मो घर मो परिवार मोर इथुर जे मुक्त हुए सेमाने शुद्ध प्रेम सेवा करि पारंती। भगवत गीता रे मध्य एठी वर्णना करा जायछि, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्ष्य। ये कहि परिबे एई भली भक्त किए? यही चरित्र उपरे जो प्रसंग वर्तमान में शुणुचे या उपरे जने भक्तन का चरित्र अछि, किए कहि परिबे से भक्तन किए? बहुत प्रसिद्ध चरित्र से होचंती महाराज भरत, जड़ भरत। राजश्री शरीर जेतेबेले से ठकी गले जीवन में केते बड़ त्याग करते देखंतु जीवन में। आ ब्रह्म भुवन लोक ससागर पृथ्वीर राजा समस्ते परिवार पत्नी तांकर अनुगत्य रे थिले, पुत्र माने तांकर अनुगत्य रे थिले एवं सारा प्रजा माने तांको भल पाउथिले। एभली अवस्था रे से राज्य को त्याग करिकी भगवान को पाइया पई से कौन कले, जीवन को उत्सर्गीकृत कले। किंतु गोटे हरिण प्रेम रे पड़िकी महाराज भरतंकर जीवन कौन हला, हरिण जन्म पाइया को बाध्य कला। आपण भावंतु आम माने केते आसक्तिर सूता लगे, मो घर मो स्त्री मो मोबाइल मो पिला मोर सब मोर केते आसक्ति हमें कटिचे रखिचे वर्तमान। तेणु महाराज भरतंकर जीवन में से पुनः ब्राह्मण कुल जन्म हेले सेतेबेले से कौन हेले, जड़ को पाल्टी गले। भागवत रे वर्णना करा है जेतेबेले कालींकर पूजक माने तांको बद्ध करके बलि करिया पई प्रस्तुत हे गले, परिकी माने डाक भी दे दीछन। आ गोटी मुहूर्त परे से कौन हबो ना तांकर बेक कटि जाई था। किंतु वास्तव रे जो दस्यु मन तांको मारिया पई नै थिले से माने जानि नथि जे ब्राह्मण बोली, कारण से समय लोक मानकर ब्राह्मणकर महिमार ज्ञान थिला। जड़ भरतंकर पैताटा जो उपवित एते मैला हेतिला जे से तांको देह सहित से पैता मिसी जाई, सेति से देखि ही पारले जे पैता अछि। जण जणे इति जा कोन भक्त माने परिष्कार रहया कथा, जण जणे कोन के जानि निज देह को भी घसंते इते मळी से पैता हेति को देखि होनो। तेणु जड़ भरतंकर सेही भली अवस्था थिला। अवश्य जड़ भरत अपरिष्कार नथिले, जड़ भरतंकर भिन्न स्थिति थिला। तेणु ये दस्यु मन मारिया को आनछन। जेतेबेले मारिया को बाहरचंती भागवत रे टीकाकार माने उल्लेख करचंती जे महाराज भरतंकर जो ब्रह्म तेज थिला, जहाँ लुकायित अवस्था थिला, से ब्रह्म तेज कौन कला, देवींकर विग्रह को आगे जोड़ी बलि देवा को चाहूले से विग्रह को फुटै देला। एवं देवी से स्वयं प्रकट है कि कौन कले ना निज सेवक मान को देवी कौन कले, मारी पके मुंड सब काटी पके। आ देवींकर अनुचर माने जो थिले जो सखी माने सेविका माने से माने कौन कले ना दस्यु मानकर जो मुंड कटा हला से फुटबॉल खेल पिचकारी पूरा रक्तर पिचकारी बाहर। किंतु देवी कौन कले, महाराज भरत को कौन कले, सुरक्षा देले। भरत महाराज टिके भी विचलित ही ना जे हे देवी मते रक्षा करंतु, हे कृष्ण मते रक्षा करंतु, वर्तमान मो मुंड कटिए बसलानी, सी से समय स्थिर था। तेणु ब्रह्मानुभूति एटी जो रूप गोस्वामी वर्णना करछनी जे ब्रह्मानुभूति परे व्यक्ति कौन हुए, भौतिक उद्वेगर मुक्त हो जाई पारे। एवं से समस्त जीव प्रति समदर्शी हुए एवं सेतेबेले से प्रेम सेवा भितर को प्रवेश करिया को योग्य विवेचित हुए। वास्तव में बहुत सुंदर आपण मान कपिल शिक्षामृत नामक एक ग्रंथ प्रभुपाद रचना करछन, सेटा को पढ़िछन। कपिल शिक्षामृत छोटिया बहिटे प्रभुपादंकर ग्रंथ कपिल शिक्षामृत। प्रभुपाद बहुत सुंदर कथा कपिल शिक्षा, दुईटी चरित्र प्रभुपादंकर बहुत प्रिय, गोटे हला रानी कुंती शिक्षा, गोटे हला कपिल शिक्षामृत।
राणी कुंती शिक्षा को श्रील प्रभुपाद बॉम्बे रे 22 दिन धरिकी प्रवचन करते आ कपिल शिक्षा मत दुईटी विषय 22 दिन धरी प्रभुपाद प्रवचन देते प्रभुपाद प्रवचन उपरे दुईटी ग्रंथ संकलन कराई। प्रभुपाद से ग्रंथर सप्तम अध्याय रे गोटे बहुत सुंदर कथा लिखिଛନ୍ତି जहाँ यही भाव को प्रस्तुत कर। प्रभुपाद लिखिଛନ୍ତି जे जड़े भक्त जितेबले जाइकी भगवान कृष्ण को से कौन करे ना तांको पूजा करे, तांको स्नान कराए, तांको वस्त्र पिंधे दिए एवं शेष पूजा सरला परे गोटे सुगंधित फूल अर्पण करे एवं कहे भगवान मु आपणकर। भगवान कृष्ण प्रसन्न होइकी ताको देखन। प्रभुपाद तापर लिखिଛନ୍ତି जे आम जीवन लक्ष्य होची भगवान कौन हवा ना प्रसन्न मुखारविंद को देखिवा। भगवान जो ना आम को चाहिए आम जीवन में किसी सब आवश्यकता पूरा है। तेणु ये जो प्रेमपूर्ण सेवा रही जो भगवान को किसी पाइबार आशा नाठू ऊर्ध स्थिति हूँ आम भगवान को किसी दबा। तेणु ये कहुची जे ये जगत रे तीन प्रकार सुख अच्छी। गोटे हूँ आप नोट करिया दरकार, गोटे हूँ भौतिक सुख, गोटे हूँ आध्यात्मिक सुख, आ गोटे हूँ भक्ति जनित सुख। तेणु ये भक्ति जनित सुख व प्रेमपूर्ण सेवा जनित सुख ये भौतिक जगत रे मिलवा संभव हुए। से लगी प्रत्येक व्यक्ति जी आस्तिक हो व नास्तिक हो से जिते कौन मंदिर को देव मंदिर को जाती से सुख पाते मन टा बहुत हल्का लगे। तेणु भक्त जदि से कौन करे जीवन रे अर्थ को प्राधान्य दिए ताल से भक्तर परिभाषा जाओ। बुझिपार्छन आपण आमको अर्थ रोजगार करियो ता माने नुहे जे अर्थर आवश्यकता नहीं, अर्थ निश्चित रोजगार करियो किंतु जीवन रे आमे बुझिया दरकार जे भगवान कृष्ण होचंदी जीवन सब किछि, अर्थ नुहे घर नुहे। जदि आमे एई जिनसटा को बुझी जाइजे जीवन में ताहले आमे शुद्ध भक्त स्थिति को पळेबु। आपण जे कोन से अवस्था रे थांतु ना काहे आपण चाकरी करंतु कि पाठ पढंतु कि गृहस्थ होंतु कि सन्यास नियंतु जदि जने एई जिनसटा को बुझी पारछि ताहले से कौन हम ना भगवान प्रेमपूर्ण सेवा से करिपारिबो। जो मनकर उपभोगर वासना अच्छी भगवान सहित लीन होबार कामना रही सबू कौन ना भौतिक भावना रूप में विवेचित हुए। तेणु प्रभुपाद ये कहते निर्विशेषवादी माने भगवान पाखे लीन हवा को निज जीवन चरम लक्ष्य बोली भावती। ये भावधारा भौतिक वासनार एक विस्तृति मात्र। तेणु विभिन्न प्रकार आमे इच्छा करछे जने बहुत उच्च पदवी पाइबा चेष्टा करछि, समाज रे प्रशंसा पाइबा चेष्टा करछि, कि सुंदर होगा चेष्टा करछि। तेणु ये सब कौन ना भौतिक भावनार अंतर्भुक्त। जीवन में पूजा लाभ प्रतिष्ठार इच्छा बड़ प्रबल आर जहाँ कहते एथि व्यक्ति पागल हो जाए सम्मान पाइबा। तेणु एठी कहउछंती जे भगवान दिव्य प्रेमपूर्ण सेवारे जने निजुको जो संबंधित करे से ज्ञान अर्जन करे। देखिए आपण जिते सेवारे नियुक्त हेबे एवं सेवाटा जिते उत्कृष्ट मानर आपण अर्पण करिवे धीरे धीरे भगवान कौन करिवे आपण हृदय भितर आपण को शिक्षा देवा को प्रारंभ करिवे। एठी कहउछन व्यक्ति भौतिक दिगरे हो बा आध्यात्मिक दिगरे हो अधिकरु अधिक कोई बड़ इंद्रिय वासना चरितार्थ करिवार जदि इच्छा अच्छी सीए सेवार आनंद प्राप्त करि परिबो नाही। तेणु रूप गोस्वामी एटी कहते भक्ति मुक्ति पिशाचार ताको पिशाच सहित तुलना करछन्ति। तेबे एई कथा को आमे प्रथम दिन भक्ति रसामृत सिंधुर प्रथम क्लास रे प्रस्तुत करथिलु। किए कहि परिबे से चरित्रटी कोन? एठी पिशाच सहित तुलना करछन्ति आपण माने भूली गले। अरे जेतेबेले भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रूप गोस्वामी रचना करथिले एटी भक्ति मुक्ति पिशाचार्य जेतेबेले श्लोक लिखिछन्ति सेतेबेले तांका पाखु श्रीमद् बल्लभाचार्य आस्थिले एवं बल्लभाचार्य जेतेबेले देखिले जे रूप गोस्वामी मुक्ति को पिशाच सहित तुलना करछन्ति तेणु सी रूप गोस्वामी को कहले जे ग्रंथ रे किछि त्रुटि अछि
मुझे शोधन करदे। तेणु रूप गोस्वामी बड़ विनम्रता सहित श्रीमद वल्लभाचार्य को गुरु रूप में ज्ञान करते प्रणाम कले एवं से देदेले से पाखरे श्री जीव गोस्वामी पाद छिड़ा होते एवं सी कहले भाई ये व्यक्ति किए जी मो गुरु लेखा उपरे भूल बाहर कर। तेणु जीव गोस्वामी कौन कले सेवार बाहाना कर जमुना को जल आने को गले एवं अधा रास्तार ही कौन कले ना प्रश्न पचार आरंभ कले जे हे महात्मन आपण किए आपण ये ग्रंथ पर कोठी भूल अच्छी बोली आपण भावुछन। से कहले ये रूप गोस्वामी लिखि भुक्ति मुक्ति पिशाच मुक्ति को पिशाच कहि। तेणु जिते मुक्ति को पिशाच शब्द रे जीव गोस्वामी कहले मात्र 15 मिनिट भितर जीव गोस्वामी कौन कले श्रीमद वल्लभाचार्य को परास्त करदे। तेणु वल्लभाचार्य कौन कले आसिक सांगे सांगे कौन कले रूप गोस्वामी को ग्रंथटी को फेरई देले कहले नाई रूप किसी भूल ना। तेणु शेष रूप गोस्वामी तो जानी पारे कथा कौन एवं वल्लभाचार्य गला बेलू गोटे कथा पचारिदे कहले तुम पाखे जो पिलाटी छिड़ा होता से किए। तेणु रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी परिचय भी देले से कहले सी वर्तमान गोटे छोट पिला आज्ञा सी किसी जानी। तेणु वल्लभाचार्य कहले जब तुम्हें ताको शिशु बोली कहूच आ शिशु अवस्था तो तार ये प्रकांड विद्वान ये प्रकांड ज्ञान रही से बड़ हम से कौन हम। तेणु रूप गोस्वामी को बुझिया को बेसी समय लगे जीव कौन कर। तो जीव गोस्वामी आसिले रूप गोस्वामी से बस पचारे जीव तुम्हें कौन कौन विलंब है ना पानी आने विलंब है ना बाटर आ कि कर ना हाँ आज्ञा गुरुदेव मु वल्लभाचार्य सहित शास्त्रार्थ कर। रूप गोस्वामी कहले वर्तमान तुम्हें वृंदावन बाहर को पड़ा वृंदावन में रहिवार योग्यता तुमर आ कारण तुम बहुत ज्ञानी हवार तुम्हें प्रशंसा पाइबार बहुत मन हृदय तुम लालसा अच्छे। तेणु ब्रजरे जो मैंने रुहती से सब भावना रही से ब्रजर रही पारे। तेणु जीव गोस्वामी बाहर करदे जीव गोस्वामी गुरु त्याग कले मु कौन करी से जाइकी नंद गाँ पाखे जाइकी से भजन करने को लगे। सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन जीव गोस्वामी को खोजुन। तेणु दिने नंद गाँ जाइए सनातन गोस्वामी एवं से माधुपुरी मागुचन। तेणु नंद गाँव लोक मैंने कहले रे बाबा तू केमितिया बाबा तू माधुपुरी खाऊ रुटी खाऊ आम गाँव में गोटे साधु अच्छा सी अटा पीकी भजन कर। तेणु सनातन गोस्वामी से साधु को देखा को आसला से साधु जनक किए ना श्री जीव गोस्वामी आठी नंद गाँव में कौन कर गुरुंकर विरह से गोपाल चंपू नामक ग्रंथ रचना कर एवं सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेकिन आसिले राधा दामोदर मंदिर में पचारे रूप गोस्वामी को जे जीवर प्रथम कर्तव्य माने भक्तर प्रथम कर्तव्य कौन वैष्णव प्रथम गुण कौन हवा दरकार। तेणु रूप गोस्वामी उत्तर देले जे नामे रुचि आ नामे रुचि केमती हम ना जीवे दया। तेणु सांगे सांगे सनातन गोस्वामी कौन कले ना जीव गोस्वामी को आगु को आनी कहले जदि जीव प्रति दया कर अच्छी यही जीव कौन दयार पात्र नुहे। तेणु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदेश रे जीव गोस्वामी को रखिदे किंतु थरे कौन है पुणी जीव गोस्वामी जीवन में आउ थे विडंबना आसला। थे गोटे महा गर्वी व्यक्ति शास्त्रार्थ करके से आसी एवं सी जमुना कूल कौन कर बहुत जोर बाजा फजा बजे जाऊँ। जीव गोस्वामी जमुना कूल छिड़ा लोक पचारे कौन एत जोर कहीं आज वृंदावन शब्द हो से कहले आज्ञा जड़े दिग्विजय पंडित आसी वृंदावन भी साधु मैंने दिग्विजय बोली घोषणा कर डाकिले डाकिले किए पत्र देती वृंदावन देखला बेलू रूप सनातन कौन कर हस्ताक्षर कर जीव गोस्वामी कहले बस ये बस तो रूप गोस्वामी हस्ताक्षर नहीं आस सनातन हस्ताक्षर नहीं मो संगे गलु तो दिग्विजय बोली घोषणा कर मात्र 10-15 मिनिट भितर से दिग्विजय पंडित को रूप जीव गोस्वामी कौन कले परास्त कर नाक रगड़े। हाँ तेणु जीव गोस्वामी तो देखी पारे रूप सनातन हस्ताक्षर करदे से कहले रूप सनातन दैन्यता जो हस्ताक्षर करदे तू विजयी बोली भावु तो मो सहित भीड़ रूप सनातन कथा पछे आस। तेणु जीव गोस्वामी आसला पुणी विलंब है। रूप गोस्वामी पचारे जीव कौन पे आज विलंब हो ना आज्ञा सी गोटे बहुत अहंकारी व्यक्ति मस्त देखाला आपड़ विजय पत्र देते। रूप गोस्वामी कहले तुम्हें पुणी शास्त्रार्थ करचे आज से हाँ गुरुदेव शास्त्रार्थ कर परास्त कर दी।
तेणु रूप गोस्वामी कहले भाई देख तुमर बहुत पूजा लाभ प्रतिष्ठार इच्छा अच्छी वृंदावन रे जो मैंने यही कार्य करती सी ब्रजरे तुम्हें पुनः पड़ा। तेणु सनातन गोस्वामी पुनः रूप गोस्वामी को आसी बुझेले श्री जीव गोस्वामी ही उपदेशामृत नामक एक ग्रंथ रचना कला जहाँ बोध हुए आपण मैंने समस्ते पढ़ी सारी। तेणु ये जो ग्रंथटा जीव गोस्वामी लिखा है एवं ताहा आम समस्त आम आध्यात्मिक जीवन मानदंड होकर रहे किंतु आपण मैंने कथा चरित्र शुणिकी जीव गोस्वामी के भूल भावे जे जीव गोस्वामी पूजा लाभ प्रतिष्ठा थिला बोली जीव गोस्वामी स्थिति रे पूरा ठीक थे और रूप गोस्वामी स्थिति रे पूरा ठीक थे। पर समय हेले आगु को चरित्रटी मु आउ थे आपण मानक पचारि आते जीव गोस्वामी केमिति ठीक आम मैंने श्रवण करिया आपणकर कर्तव्य हूँ कौन ये चरित्रटी को लेखि रखिए आई समय मुझे पचारि कहे आ भूलिए ना या चरित्र गुड़िक के गप बोली भावे ये चरित्र गुड़िक हूँ आध्यात्मिक जीवन मेरुदंड स्वरूप जदि या केतबेले एकांत समय मन पकेबे देखिए आपण चित्तवृत्ति केमती हो सब चरित्र शुणिकी ही व्यक्ति कौन हुए आम जीवन जोटा सबुठ बड़ भयंकर शत्रु काम भाव जड़े काम भाव पर विजय लाभ कर वैष्णव मान चरित्र शुणे तेणु एठी कहुच्छी कौन ना ब्रह्मानुभूति लाभ कला परे जड़े भौतिक उद्वेग मुक्त हो जाए अर्थात आज मोर कौन हम काली युद्ध लगी जाइए आज ये लोक को मारी दिया काली कौटी मंदिर भांगी दे ये सब उद्वेग जड़े मुक्त हो प्रत्येक जीव प्रति से समभाव हम आउ सी प्रेमपूर्ण सेवा करने को विवेचित हम। आपण मान भर गोटे प्रश्न ये पचारि वाणी को विराम देवी आपण मैंने किए कहींपारे जे प्रत्येक जीव प्रति समदर्शी भावटा कौन गोटे उदाहरण दे बुझे पारे मु आपन गोटे उदाहरण दूची थरे संत ज्ञानेश्वर आपण ना सुनचन भगवान का जने महान भक्त ज्ञानेश्वर का ना को मैंने सुनचन हाथ उठेले कई शुणी ना ज्ञानेश्वर ना भारत वर्ष जने महान भक्त संत ज्ञानेश्वर तेबे से शिवजी ऊपर थरे जल चढ़ाई जाऊे एवं गोटे कुकुर तृषार्थ होगी कौन कला ना जल मागिया लगिला एवं से कौन कले ना जो जलटा शिवलिंग ऊपर ढालिया नौले से कुकुर पाटे देदेले ओम नमः शिवाय बोली कहे एवं साक्षात से कुकुर भितर कौन हेले ना शिवजी प्रकट हो शिवजी परीक्षा करने चाहूले संत ज्ञानेश्वर केते समदर्शित भाव रही जो प्रभु मंदिर भितर अच्छा से प्रभु प्रत्येक जीव भितर भी अच्छा जो जड़े भक्त उन्नत स्थिति को जापे से जिनस को बुझी पारे एवं से समस्त कौन करे ना मंगल चिंता करे एवं से भगवान समस्त मंगल चिंता कर जड़े शुद्ध प्रेमपूर्ण सेवा कर योग्य हो वाणी को ये विराम दूची आगामी काली अध्याय अवशिष्टांश आदि समय हुए मूल श्लोक सहित काली आम मैंने भक्ति रसामृत सिंधु को चर्चा करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कार किसी प्रश्न ठीक अच्छे वाणी को विराम देवा वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलिए तो